कैच देम यंग के इस नए पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट शिप्रा शर्मा। आज हमारे इस पॉडकास्ट में आइस की तरह बहुत कूल एक युवा विद्यार्थी हैं जो दिल्ली से हैं। और आज उन्होंने अपना समय हमें देना स्वीकार किया है। वो थोड़ी चुप है बट स्पीक शी स्पीक्स लेस बट हर वर्ड्स बिकम more powerful when she expresses herself and when she connects to the people. So, and she is an excellent orator. So, without wasting a moment more, I take the privilege to introduce Sana between us. Hello, Sana. Welcome to Catch Them Young. And please introduce yourself. Hello everyone, my name is Sana. I'm a student from class 12th right now. I'm pursuing biology in my school. So when I talk about myself, I'm a person who firmly believes that hard work never betrays. And when you put your heart and soul towards something, then you will definitely achieve it one day or later. So मैं भी आपकी तरह एक normal student हूँ, sitting here and talking to ma'am right now. Correct. Yeah. So Sana, जो आपने अपने बारे में बताया था and all after reading all these things, the first question which comes to mind is how do you balance between your logical world and emotional world of poetry? Because you yourself are a poet as well and a debater too. Yes, ma'am. So for me, poetry is like the breeze that connects the heart and the mind. So first, what happens when you write a poem is emotions flow in. So the first step is emotion. Then the second step is penning it down. Then comes the logic. So I believe that poetry and logic they go hand in hand. So जब आप words लिखते हैं, then you put logic to it that how you are going to express it. They don't oppose each other. They go hand in hand with each other pretty well. That's what I. And how about the logical world? Ma'am, the logical world is the way you see it. Okay, so poetry is basically giving reasons to your logical world, like how you feel about the logical world. So, logical world is something that when you write a poem, right? So you see the world around you, and then you express it. So they both are the similar things. So I don't find any issue going Hmm? uh, living the both of them. Right? सना, अभी तक का कितनी पोम्स आपने लिख ली हैं and if you can recite any of it right now? I first started writing when I was in sixth class. I had my own blog बहुत पहले. जब COVID आया, then I used to write poems about feminism, the like topics which were way ahead for my age at that time of period. So I used to write things. I had my blog named Writing with Zeal. So that was something that pushed me forward towards writing, and I think by now I have written more than 50 poems. And one I also I had my entry in a Veer Gatha competition because of it only. I wrote a poem on Vikram Batra. So that's that's the thing that I've So been doing so recently, far. have you written something? Ma'am, recently life has been really up to time. Like I have my coachings and I have my school. It's all really there is no space for my hobbies right now, I would say. Yeah, I understand. Yeah. Yes, So, ma'am. Sana, as I have told earlier, even that you are a debater. So, Yes. are you more into listening or into speaking? So when we talk about debate, people often relate debating with speaking and rather speaking in a aggressive manner, I would say. आप किसी को बोलते हो you are debating. So they imagine you shouting on the podium and going like you can't say that, but that's not debating is all about. Debating is about listening. When you Hmm. listen your opponent's thought, then you process them and then you speak in an intellectual and efficient way. कि आपको भी अपना पॉइंट रखना है और आपको दूसरे का भी पॉइंट सुनना है. That's what Yeah. debating is about. So I believe listening is the important thing in debating. Mm-hmm. And what are the Yes. favorite topics in which you tend to debate? My favorite topic is the social, like the social topics that are going on right now. Uh, I myself, when the last debate I did was on budget, like the Hindustan ka budget, the
रिलीज हुआ था, दैट वाज माय टॉपिक फॉर द डिबेट. तो इन दैट आई पॉइंटेड आउट कि जो बजट बनता है दैट इज प्रिटी मच बायस्ड. That's what my opinion is. Obviously, सबके अपने अपने opinions होते हैं. But मेरा opinion was that कि it does not focus on the people who are suffering right now. It talks हम्म about the privilege, it talks about the defense system, but not the people who are actually suffering in our country. हम्म तो मेरा जो टॉपिक रहता है मोस्टली डिबेट में, दैट्स अबाउट द सोशल चेंजेस हैपनिंग अराउंड. मेरा पॉइंट So, ऑफ व्यू, माय टेक ऑन द चेंजेस हैपनिंग अराउंड. mm-hmm. So, when we talk about your, opinion, your points, so आप मुझे क्रक्स पे बताओ कि जब आपने बजट के बारे में, अंडर प्रिविलेज्ड के बारे में बोला, how if you would be a finance minister for few months, so what would be your take? How you will improve the, lifestyle of underprivileged people? How they can be helped, and we can, increase their social startup. ओके मैम. So, right now the budget focuses on the defense system. So what I would do is, I believe कि education is the first step. हर चीज का, right? So if you are educating people, you are motivating them कि आप कुछ अच्छा करो. And then obviously there are other, हमारे देश में ना basically there are more skilled workers who are not recognized enough, I believe. It's Correct. like my father, right now, he is in a catering company. Okay, he is an operation manager in the catering company. Now, what happens is, एक skill issue आया एक skill worker में, उसको हटा दिया. Nobody even bothers to ask him कि why you are doing this. So it's like skilled workers are pretty much underprivileged in our country, and having a skill is one of the best things a person can have, right? मतलब you can, all of us can buy a degree, but Correct. developing a skill is something जो बहुत मुश्किल से होती है एक इंसान में. So what I would do is, I would invest, I would ask my country, like the budget and all, to focus primarily on the skill workers, right? What can we do? How we can invest in the skill workers? हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे they have what do you call that, a workspace, right? A proper workspace. They have a security कि इनकी जॉब है, आगे भी रहेगी, राइट? सो दैट समथिंग आई बिलीव मैं चेंज करना चाहूंगी. Yeah, so, in this regard, add something into that. कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, स्किल इंडिया. डू यू नो अबाउट इट? यस मैम, आई हर्ड अबाउट इट. द थिंग इज कि मोस्ट पीपल दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट. करेक्ट. दैट्स द थिंग, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि ऐसा भी कुछ है. वी कैन डू बेटर देन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. दे आर करेक्ट. नॉट अवेयर. दैट्स द इशू तो दैट. स्किल इंडिया का, अगर कोई बता, जिसको काम करने की लगन है, एंड ही इज मोर इनटू, नॉलेज गैदरिंग एज वेल, अगर वो देखे तो गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें दे, ट्रेन पीपल, और इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे वो स्किल वर्कर्स को लेकर के, उन लोगों के एक पूरे ग्रुप को लेकर के, दे गो फॉर डिफरेंट डेस्टिनेशंस जहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, एंड वहां पे इंडिया का बहुत अच्छा नाम कमा करके आते हैं. दे विन द लॉरेल्स एंड ऑल. सो दिस इज मोर अबाउट, मुझे लगता है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी यस मैम, है ना? आई क्योंकि टोटली एग्री जैसे, विद इट. करेक्ट, बिकॉज मैं, अगर आप अर्ली मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं, इफ यू गो फॉर अ वॉक और आइदर यू गो फॉर अ स्कूल, सो यू वुड बी सीइंग इट एवरी डे कि दिहाड़ी मजदूर सुबह सुबह खड़े रहते हैं. इट इज लाइक इट्स अ मार्केट, जो कुछ कुछ रुपयों में उनका एक फिक्स प्राइस होता है पर डे का. दे गो टू, डू जॉब्स हियर एंड देयर. तो उनके लिए एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, एंड यस यू मैम. आर एक्चुअली राइट इन टू दैट. बट इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बहुत जरूरत है. जो छोटे ओके तबके के लोग. मैम. यस मैम, यस मैम. The thing is, my mother, she teaches kids from government school, right? As a tuition that is free of हम्म cost. So she does that. Now what happened is, there was this kid. His father is a laborer. वही हम्म दिहाड़ी वाला हिसाब है, रोज सुबह जाते हैं रात को आते हैं. तो that kid came to my mother crying one day कि जो बिल्डर थे, जो कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने उनका पैर तोड़ दिया.
ओह गॉड। एंड एग्जैक्टली, एंड कोई और नेक्स्ट डे उनकी जगह रिप्लेसमेंट तो आ ही जाएगी। और एंड दे व्हाट्स पेड अबाउट द हिम बेयर कंपनसेशन? मिनिमम, नो compensations were given, no compensations were given. And he has not filed anywhere, like in police station or somewhere? He did later on, we held in on that, he did. Then right now his case is in the court, so we are expecting That's very some painful. compensation. Yes, that's really painful, that's what I'm saying, right? कि वो तो चले गए, उनकी जगह नेक्स्ट डे कोई और आ गया, एंड दे पे हिम bare minimum 600 a day. I So know. that's really disheartening to see. हाँ, सो फाइनली वी कम टू द सेम पॉइंट कि जब भी बजटिंग में बात हो तो स्किल इंडिया डेवलपमेंट को लेकर के ज्यादा तवज्जो दी जाए, कि लोग अपने जो आत्मनिर्भर भारत हम बोलते हैं वो और स्ट्रेंथन हो। है ना? Agreed. सो सना, आपका कहना है कि सीखना एक लगातार क्रिया है, और ये कोई अलग से कोई काम नहीं है, इट्स अ डेली प्रोसेस। तो इसे जारी रखने के लिए आप ऐसा क्या करती है कि डेली लाइफ में आप कभी बोर नहीं होते? मैम सीखना इज अ जर्नी, ठीक है, और आप हम्म। हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं चलते चलते। हम्म। तो व्हाट आई डू इज कि मैं भी नॉर्मल इंसान ही हूँ, मैं भी बच्ची हूँ, कभी कभार तो मैं भी बोर हो ही जाती हूँ करते करते जो कर रही हूँ। तो हम्म। व्हाट आई डू इज आई आस्क माई सेल्फ टू क्वेश्चन। पहला कि अगर मैं ये कर रही हूँ और इसमें मुझे रुचि नहीं आ रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, अगर इसमें नहीं आ रही है तो किसमें आ रही है। ये दो सवाल हैं जो मुझे एक हर मतलब हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखाई देते हैं। अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो वहां सीख लेंगे, वहां नहीं हो रहा है तो यहाँ सीख लेंगे। few days back I talked to one of the student like you. उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने को हर हमेशा गाइड करते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस, जस्ट ट्राई इट वंस, एंड तुम फिर कल हम्म। ये करोगे, तुम्हें कल ये मिलेगा। तो वो जो पाने की यस। चाहत है, उसको उस चीज को कॉन्कर करने की चाहत है, वो अपने को जिसे कहते हैं ना, मोटिवेट करने से बहुत कुछ आदमी हम्म। आगे बढ़ सकता है बहुत। एंड इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन कि आपके पास हमेशा एक प्लान भी रहता ही रहता है अपने। सना, क्लास में जब बोर होते हैं और पढ़ने में मन नहीं लगता, तब क्या करते हो? मैम मैं ना स्कूल ही बहुत कम जाती हूँ, मैं सच बताऊँ। मुझे हम्म। स्कूल जाने मैं स्कूल ही बहुत कम जाती हूँ। अच्छा। आई हाँ जी। और जब मैं जाती हूँ, पहली बात तो मुझे घर पे पढ़ने में बहुत आराम से, मतलब अपने कंफर्ट जोन में पढ़ रहे हो। बट फिर ऑब्वियसली स्कूल जाना भी जरूरी है, तो जब जाती हूँ कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, केमिस्ट्री क्लास में मन नहीं लग रहा, तो व्हाट आई डू इज आई कीप द बुक साइड, आई टेक आउट अ पेन एंड पेपर, देन आई राइट डाउन सारे टॉपिक्स जो मैम ने अभी तक कराए, आई गो थ्रू देम वन, और फिर जैसे ही आई गैदर माई अटेंशन बैक, फिर मैम की फिर से सुन लो, बैक टू द टॉपिक। या फिर ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज गो टू वॉशरूम, स्प्लैश वाटर ऑन योर फेस एंड कम बैक, उससे भी सब हो जाता है। दिमाग में एक चीज चलती रहती है कि स्कूल आए हो तो पढ़ना तो है ही, और पढ़ना है तो सीखना भी है। तो फिर वही उसी फ्लो में खुद को समझा के थोड़ा फिर कंसंट्रेशन बैठ जाता है। बहुत सारे बच्चों से मैं सुनती हूँ, वो बोलते हैं कि जब बोर हो हाँ जी। जाते हैं तो कॉपी में ही, नोटबुक में ही छोटे छोटे कार्टून्स बनाने लगते हैं हाँ सो जी। हाँ दैट जी। वो खुद को थोड़ा सा उससे डेविएट कर पाए उस बोरियत हाँ से। जी। सो मैम सना, बोरियत तो होती है, बोरियत तो हम्म। पूरी पूरी होती है कभी कभार। बट फिर एक वो रहता है ना कि यू आर कमिंग टू स्कूल टू लर्न समथिंग, सो व्हाई टू वेस्ट टाइम। तो मैं बस आई स्विच द सब्जेक्ट्स फॉर अ व्हाइल, आई रीड द अदर टॉपिक फॉर 5 minutes, देन आई एम बैक इन द क्लास, ताकि मेरा कोई लॉस भी ना हो। देयर इज वन थ्योरी जिसका मैं नाम पूरी तरीके से भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इट इज कुछ 24 समथिंग करके है कि यू नो 25 मिनट पढ़ाई करो एंड देन ब्रेक लो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, दैट्स द साइकिल, हाँ, 25 मिनट पढ़ाई करके ब्रेक लेना, 5 मिनट, एंड देन वापस पांच से। मिनट का, हाँ, इट गिव्स हाँ मोर जी। कंसंट्रेशन टू स्टूडेंट्स। ये हाँ सो जी मैम। व्हाट इज योर एम्बिशन राइट नाउ, सना? कि क्या आगे बनने की चाहत है आपकी? मैम सबसे पहले तो कुछ ऐसा करना है जो सिर्फ मेरे लिए ना हो, बाकियों के लिए भी हो, कि मैं तो कुछ कर ही रही हूँ पर एज अ सोशल कॉज बाकियों की भी हेल्प हो, सबसे पहला काम ये करना है। आई आई हैव जॉइंड दिस एनजीओ
we grow together. This NGO basically focus on uh, creating awareness on the menstrual cycle Mm-hmm. amongst the women Mm-hmm. एंड द गर्ल्स हु आर अंडर प्रिविलेज बेसिकली, क्योंकि अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सैनिटरी नैपकिन्स नहीं यूज करते हैं, राइट? सो टू हेल्प देम आउट, Mm-hmm. सेकेंडली I help my mother at times. She teaches kids of the government school who are not so privileged, and she helps them out with things. So Mm-hmm. पहला कॉज तो वही है कि कुछ भी करना है तो दूसरों की हेल्प करनी है किसी ना किसी वे में, राइट? देन सेकेंडली, जब मैं अपने एम्बिशन की बात कर रही हूँ तो राइट नाउ आई आई वांट टू परस्यू एमबीबीएस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट राइट नाउ। Mm-hmm. वही सेम रीजन, आगे जाके किसी लाइफ बचाने में जो मजा है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो तो और कहीं मिलने Yeah, से रही। correct. सो Because doctors यस are considered as a second god in the earth, है ना? मम, गॉड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट यस, हाँ, इट विल बी obviously. ग्रेट टू हेल्प समबडी। करेक्ट बिकॉज यस। मेरे मेरी मतलब इट्स अ फ्रेज, अदरवाइज मेरी खुद की भी एक थॉट है कि गॉड को गॉड रहने दो और इंसान को इंसान ही रहने दो। इंसान सही बात है जो मैम। है वो इंसान की हेल्प करते, यही बहुत बड़ी बात है। उसको बहुत यस ज्यादा मैम। पर्सोनिफाई करने की जरूरत नहीं है। यस दैट मैम, इज द अग्रीड। ह्यूमैनिटी थिंग एंड वेरी गुड यस मैम। दैट यू हैव दैट थॉट, सना, because you are into many things. Are you, would you be a karate kid or a debate mic drop? So what's more important to you? That's a difficult one because all three things they are really near and dear to my heart, because जब से होश आया है तब से तीनों चीजें कर रही हूँ। Mm-hmm. I And how was about, 6 when I joined karate. oh, acha. Yes. So till now you are practicing it, learning it? Ma'am, in 11th and 12th, I had to drop out because of the Correct, coaching yeah. and all. But yes, on weekends, I do go to classes for like 3 hours on Mm-hmm. weekends. So that is maintained, but not as much I was doing before 11th and 12th. वो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ ही जाता है चीज़ों के लिए, तो Correct. वो हाँ, भी to achieve आई something, रिग्रेट you डूइंग। have to put something at backlog. करना पड़ता है. यस मैम, एग्जैक्टली। तो Hmm. वही, although debating, I still go on debates from school. Mm-hmm. जब भी कोई कंपटीशन आता है, I try my best to be there, because it's Correct. something, debating is something you don't have to prepare for it now. You read the topic once, you note down the points you want to speak, and that's all you do. Then you go in front of the people. So, because this is one thing, karate is one thing which you are practicing when you were a Yes young ma'am. child. करेक्ट. सो व्हाट वर द अकम्प्लिशमेंट्स, आपने इस पे क्या क्या, कौन कौन सी बेल्ट्स हासिल uh, की है? इसके अलावा व्हाट वाज द व्हाट यूज्ड टू बी द शेड्यूल एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न कराटे? अ मैसेज okay फ्रॉम योर साइड टू अदर पीपल. okay ma'am, so I started pursuing karate, as I said, I was 6 years old. हम्म. So starting के 2-3 years, it was just a sort of enjoyment for me, I would say, क्योंकि तब तो बच्ची थी, तब तो वो कराटे क्लास जाना है so it was enjoyment for me. But after that it got serious. I started going to tournaments. I have played state and I have played national as well. I got silver in nationals, Kotaka हम्म. Cup. So my accomplishments, I have won over I would say 15 medals in karate itself. And I am a black belt right now. So my message to everyone is self defense सबको आना चाहिए, right? हम्म. So we are living in a city, and it's not safe to step outside, right? For many of us till date. So learning how to defend ourselves, learning how to how to be a better version of ourselves, because karate is not just a sports, it's a way of living life, I would say. My schedule was, the classes were from Monday to Friday, 6 to 8. So, and on weekends, sir took me to Greater Noida. He had additional classes Yes. there as well हम्म. with the older kids. So I always thought that karate is something everyone should learn, because
first thing first, you are having a physical workout, right? Hmm. Secondly, you are you are also challenging your brain because when सामने से someone is attacking, Hmm. you challenge your brain and your body to work together on how to defend ourselves and then attack on the other person, right? When you are fighting basically in karate. So Hmm. it's defending and attacking. So it makes the coordination in our body. Hmm. So overall, everyone should learn karate or maybe judo. Hmm. That's all I'd say. Martial arts, any type of martial arts, if Yes, you ma'am. say. Any type of martial Hmm. arts. So, there is one question which I guess I have never asked to anyone, because you are a young kid now, and more like you have reached your puberty, and adolescent age even. Yes, ma'am. मेरा एक क्वेश्चन हमेशा बहुत बचपन से मेरे खुद के लिए भी है, एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग इट टू यू. हम बोलते हैं कि सिटी सेफ नहीं है. आई अंडरस्टैंड कि Yes, ma'am. कोई भी जगह सेफ नहीं है. दिस Yes, ma'am. अर्थ इज नॉट सेफ फॉर वुमेन इन जनरल. लाइक Yes, ma'am. इमोशनली सेफ नहीं है, फिजिकल सेफ नहीं है, बट इसी एनवायरमेंट में मेन को भी चलना है और वुमेन को भी चलना है. सो Yes, ma'am. किसी की बुरी नजर इज वन ऑफ द रीजंस कि हम सेफ नहीं है. बट आर देयर एनी मोर रीजंस एज अ वुमन जो आपको लगता है कि दोज कुड बी द रीजंस? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. अदरवाइज, जो बढ़ता हुआ फैशन सेंस है, हाउ डू यू सी इट? बिकॉज इट इज वन थिंग which is taking us to another level, जहाँ पे हम बॉडी एक्सपोज को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एंड टू उसको अपने, अगर शॉर्ट वर्ड्स में कहा जाए तो अपने स्किन के साथ ईज होने की बात करते हैं. सो इज इट, डू yes, यू ma'am. फील दैट कि ये बहुत सही है, चाहे आइदर इट इज Okay, अ so the मैन और अ first, वुमेन? मेन में yes, भी अब ma'am. काफी चेंजेस आ चुके हैं, और वुमेन Yes, में तो ma'am. Agreed. फैशन इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन वुमेन ओनली. Yes, ma'am. So, ma'am, the first question is जो आजकल unsafe लगता है. हम्म. I believe it's because in like everywhere सबको हम्म. बोला जाता है. I believe that कि it's okay to objectify a female. हम्म. Okay, it's okay to objectify a female. हम्म. And this is something which I personally I hate it so much I can't even tell you. How can you objectify a female, a living being? How can हम्म. you do that? Okay, and then even if you are doing it, then if अगर कोई लड़की ना कुर्ता पजामा भी पहन के निकल रही है बाहर, हम्म. तब भी लोग देखते हैं. उसको तो कोई करेक्ट. रोक ही नहीं सकता, राइट? अब when we talk about the cases, the rape cases, जनरली लोग बात नहीं करते. आई डोंट नो क्यों नहीं करते. A minor is getting raped, a teenager is getting raped, and aged woman is also getting raped. उनके ड्रेसिंग सेंस में तो एक बच्ची ने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, एक हम्म. टीनेजर ने अभी फैशनेबल कपड़े पहने हैं, और एक एज्ड वुमन तो नॉर्मल अपनी साड़ीज एंड ऑल, सबने हम्म. डिफरेंट डिफरेंट पहने, एंड येट दे ऑल आर द विक्टिम्स हियर, राइट? सो वी करेक्ट. कैन हाँ. नॉट ब्लेम द क्लोथिंग. वी कैन नॉट हम्म. ब्लेम द क्लोथिंग. What we हम्म. can blame is लोगों की ideology. That needs to change, right? करेक्ट. हम्म. As you said कि fashion industries are changing nowadays. मैम, what I believe is जो आपको पहन के अच्छा लग रहा है वो आपको पहनना चाहिए, right? I myself I'm growing in this environment जहाँ पे exposing कपड़े पहनना is not okay, right? And understandable. लोग ही हम्म. नहीं है आस पास के ऐसे कि आप exposing कपड़े पहनो, right? But even if I am wearing it and मुझे अच्छा लग रहा है तो I don't get it, what's the issue in it? हम्म. मुझे तो I if you are dressing up for yourself, right? आपको अपने आप करेक्ट. को देख के अच्छा लग रहा है. You are हम्म. feeling confident in your own skin. अब हम्म. आपको वो बैगी कपड़े पहन के अच्छा लग रहा है, स्किनी कपड़े पहन के अच्छा लग रहा है, स्किन फिट, that's up to you. हम्म. So करेक्ट. you cannot बिकॉज blame anybody for it.
नहीं, करेक्ट। मैं ये एक Yes. परसेप्शन, एक यंग चाइल्ड का परसेप्शन समझना चाहती हूँ, बिकॉज दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं। हाँ जी। एक तो ह्यूमन माइंड की बात है कि हाउ डू यू ऑब्जेक्टिफाई अ वुमेन, अदर Yes, देन ma'am. दैट हाउ मच यू Yes, ma'am. यू नो आप एक फैशन इंडस्ट्री को इसके लिए कितना जिम्मेदार मानते हैं, बिकॉज हैंड टू हैंड अगर हम बात करें कि इंडियन सोसाइटी में मोरल्स को लेकर के, मोरालिटी को लेकर के बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं डे टू डे लाइफ में। एंड पीपल Yes, ma'am. श्योरली से कि टीवी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पीपल यूज टू इंस्पायर फ्रॉम टीवी सीरियल्स। सो Yes, ma'am. आपको कहीं ना कोई कोई एक चीज, उसके लिए आप जिम्मेदार मानते हैं किसी एक चीज को जो आपको उस फ्लो की ओर ले जाती है। सो द Yes, ma'am. क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ इट कि बच्चों की क्या थॉट है इस बारे मैम एवरीबडी वांट्स टू फिट इन, सीधी सी बात है, सबको फिट इन करना है। अभी वी आर एट दिस, आवर कंट्री इज एट दैट पॉइंट जहाँ वी आर अर्बनाइजिंग, जहाँ पे हम बाहर के वर्ल्ड से, वेस्ट स्पेशली वेस्टर्न में? कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वी हम्म। आर लर्निंग फ्रॉम देम, वी आर ट्राइंग टू फिट इन द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया इंडिया हैज अ रिच कल्चर, राइट? हमारा और बाहर के यूरोप एंड ब्रिटेन, इन सबका कुछ लेना देना नहीं है हमारे उससे। करेक्ट, We या। are totally different. So we हम्म। just want to fit in. That's what our generation is aiming on, right? To fit in, to have that connection. हम्म। That's what we are trying. But on the other hand, it's really, really, really important कि हम अपने culture को ना भूलें. But what I feel is, if we are saying कि you said कि female fashion is the main target, right? So if we are expecting a female to wear a sari or kurta, then we should also expect males to wear a dhoti. करेक्ट। हम्म। That's what I'm saying, right? कि अगर आप बोल रहे हो कि this is, if you believe that this is wrong, so हम्म। it should be wrong for males as well. अगर मेल बाहर जीन्स पहन रहे हैं, then that's also wrong in a way. करेक्ट। नहीं, मैं उसी Yes. पर्सपेक्टिव पे ही बोल रही हूँ जो एक ट्रेंडिंग बात हो रही है। एंड हाँ जी, बच्चों हाँ का जी, परसेप्शन जानना उस पे बहुत जरूरी होता है। हाँ सो जी, हाँ जी। सना, इससे एकदम इतर एकदम क्वेश्चन है कि यू वेर इनटू स्केटिंग एज वेल। सो स्केटिंग इन इंडिया इज Yes, अ ma'am. वेरी डिफरेंट जोन, एंड what were your experiences regarding it, and आप इसको एज अ स्पोर्ट्स कितना आगे तक का देख पा रही हैं? क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत एलिमेंट्री लेवल पे है, बहुत बड़ा इसका फील्ड Yes, नहीं है। ma'am. Yes, ma'am. So, in a country who is crazy about cricket and football, skating taught me to carve my own path. That's what I will say. Ki, when I started skating, I used to practice in my street, and it's all bumpy, and skating requires a flat, smooth surface, right? करेक्ट, या। So, skating community is a really small community, although we are trying to be part in a bigger picture, part of a bigger हम्म। picture, but again, अभी तो इतना कुछ उसको इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया सो फॉर। ऑब्वियसली नेशनल्स होते हैं, स्टेट्स होते हैं, बट हार्डली फ्यू पीपल नो अबाउट इट, राइट? सबको पता है कि रणजी ट्रॉफी होती है क्रिकेट की, बट नोबडी नोज कि स्केटिंग का नेशनल भी होता है। हम्म। लोगों को लगता है इट इज व्हाट, आप भाग रहे हो पहियों पे। आई वन ऑफ माय रिलेटिव लिटरली सेड इट, क्या भाग रहे हो पहियों पे, उस पे क्या करना है? सो आई सी कि स्केटिंग राइट नाउ इज, you can pursue it as a hobby, you can हम्म। do it, but looking at a bigger picture of it, right now in India, you cannot pursue it as a proper sports. That's हाँ, what I'm बिकॉज इन टूरिज्म सेक्टर आइस स्केटिंग को आप बढ़ावा देते हो मनाली में, saying. औली Yes, में। ma'am. बट Yes, ma'am. प्रोफेशनली बहुत अभी तक का इसके बारे में सुना नहीं किया है, बट व्हेन आई रेड अबाउट इट Yes, ma'am. इन योर पोर्टफोलियो, आई जस्ट थॉट कि आई शुड आस्क व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट। It needs a growth. हाँ, It एक्चुअली। requires a growth. Yes. So, Sana, there is one very intrinsic question, because apart from an student, you are a sports person. So this whole question here is almost regarding the same. So, like how sports strengthens you, and
बचपन से क्योंकि आप स्पोर्ट्स खेलते आ रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें स्पोर्ट्स का होना फ्रॉम एलिमेंट्री लेवल, आई वुड से नॉट जूनियर क्लासेस, उसको इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या ये थोड़ा मुश्किल है? क्योंकि जब हम सीनियर क्लासेस में जाते हैं आफ्टर 12th, देर आर यूनिवर्सिटीज हु आर वर्किंग इन स्पोर्ट्स, है ना, और जहाँ पे यस लोग मैम। अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स परस्यू करते हैं। एंड इवन इफ आई से, तो 10th और 12th में भी एज अ फिफ्थ सब्जेक्ट यू कैन टेक स्पोर्ट्स, फिजिकल यस एजुकेशन मैम। और स्पोर्ट्स एज वेल। यस मैम। तो उसका मेन पर्पस फिजिकल एजुकेशन कितना होता है ये तो नहीं पता है, बट आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए इट वी गिव्स विल अ टेक, बूस्ट। यस हाँ मैम। वी विल टेक इट एज अ फिफ्थ सब्जेक्ट। बट उसको एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? और अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट स्टार्टिंग से आ जाए तो आपको क्या लगता है कि कितना इफेक्टिव होगा? पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? Mama, sports is really, really important. As I said, I have been pursuing it from the very beginning. हम्म। And I believe कि sports ना आपको एक मोरल बूस्ट देता है when you are studying and you feel अब नहीं हो रहा, this is the point where I am done, and then a period of sports, a games period, that करेक्ट। just that just gives you a boost for the entire day. Now what हम्म। happens in the senior classes is आपका वो गेम्स पीरियड कभी कभार टीचिंग पीरियड में बदल जाता है, एंड ये कभी कभार बहुत ऑफनली होता है। करेक्ट। व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरा वीक में एक दिन होता है गेम्स पीरियड, एक दिन, इंडियन डायर वीक। एंड वो भी कभी कभार कोई सब्जेक्ट टीचर ले लेती है। हम्म। तो आई हैव फिजिकल एजुकेशन राइट नाउ, बट अगेन एज यू सेड इट्स जस्ट फॉर द sake of बूस्टिंग। increasing numbers. करेक्ट। That's all. हम्म। Physical education does not justify sports properly. It's just the basic. It's just the basic. I believe कि sports से related एक और subject होना चाहिए जो कि from the very beginning हो, not the primary classes of course, from the हम्म। middle section, sixth, seventh, eighth, वहां से हो, करेक्ट। हाँ। ताकि बच्चों को पता चले कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्पोर्ट्स, राइट। स्पोर्ट्स खेलना नहीं होता है बस, स्पोर्ट्स आपका माइंड फोकस करता है, आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। ये सारी बातें जब समझ में आएंगी तभी बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, उसमें रुचि लेगा। तो वहीं करेक्ट। से करना चाहिए ये सब। हम्म। यस मैम। बिकॉज आप क्लास फोर्थ ऑनवर्ड्स तो थर्ड लैंग्वेज को एक इम्पोर्टेंस देते हो, विच मोस्टली पीपल गिव यस अप मैम। बाय क्लास एट्थ और नाइन्थ, बिकॉज इट इज वेरी यस मैम। हार्ड टू परस्यू। और सिर्फ उसको परस्यू नहीं करना होता है, स्कूल के अलावा देर आर मॉनेटरी चैलेंजेस जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ट्यूशंस फॉर श्योर लेने ही पड़ते हैं यस मैम। यस टू मैम। क्लियर दोज ग्रेड्स। तो जहाँ पे हम यस मैम। अ, बाहर की लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, आई गेस बच्चों को स्टार्टिंग लेवल से ही कोई ना कोई स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की दे तरफ सकते रुचि डाल करके उनको वो पूरी तरीके से पढ़ाना चाहिए, उसकी टेक्निकल हैं। यस नॉलेज मैम। देनी चाहिए। और मैम द थिंग इज, हमारे मतलब जितने मेरे पीयर्स हैं उन्होंने इतने सारे स्पोर्ट्स ट्राई कर लिए हैं और उनको अभी तक अपना स्पोर्ट्स ही नहीं मिला है, राइट। तो अगर हम बचपन से पढ़ते हुए आएंगे कि दिस सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स रिक्वायर्स दिस सॉर्ट ऑफ फिजिक एंड दिस सॉर्ट करेक्ट। ऑफ अटेंशन, तो स्टार्टिंग से वो जब माइंड में बिल्ड इन रहेगा तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू चूज आवर स्पोर्ट, राइट। हमें पता होगा कि हम इसमें एक्सेल कर सकते हैं, एंड देन लेटर ऑन वही आपकी यूनिवर्सिटीज और बाकी चीजों में भी हेल्प करता ही है स्पोर्ट्स एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट। एट द सेम टाइम एक इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट और है कि डिफेंस सिस्टम्स में आपकी जो नॉलेज है, इसके अलावा आपका फिजिकल जो टेस्ट है वो भी इम्पोर्टेंट यस। होता है, जिसमें आपकी यस मैम। स्पोर्ट्स का, आपका दौड़ना और आपका जो स्टेमिना है वो भी चेक किया जाता है, आई गेस समवेयर। तो यस अगर मैम। बचपन से ही इसकी नॉलेज दी जाएगी बच्चों को, सो ये इसकी भी श्योरिटी बहुत है कि बच्चे पहले से ही अपने को तैयार करके रखेंगे। एंड यस सूनर और लेटर उनका जब भी टाइम आएगा, वो अपने को उसके लिए एकदम फिट उस समय रहेंगे। मैम। और यस इस मैम। तरीके से टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और एज भी नहीं जाएगी। जो बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, आई गेस इट विल हाँ जी। सेव द टाइम, है ना?
and energy as well. We can see people running 2 weeks before their ND exam, physical Correct. exam, कि ND का हाँ. physical, and they are running from the morning till evening. तो वो वाला पार्ट स्किप हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी इतने फिजिकली फिट होंगे कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। हम्म. इंडिया हाँ में जी। गवर्नमेंट ने चलाया फिट इंडिया मूवमेंट, बट वो हाँ कितना जी। सक्सेसफुल हुआ इसकी बहुत ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, बट पीपल, यू नो, दे वे मोर इंटरेस्टेड टू बिकम एन एम्बेसडर, बट लोगों को कितना बूस्ट किया पर्सनली जाकर के, इट इज अ मैटर ऑफ हम्म। क्वेश्चन टुडे इवन. यस मैम। मैम हमारे स्कूल में व्हेन फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड वी यूज्ड टू हैव योगा क्लासेस इन द मॉर्निंग। सना, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है. व्हाट आर योर हाँ प्रिपरेशंस जी। एंड हाउ डू यू सी योगा इन योर, हाउ डू यू pursue yoga in your daily routine? Okay, ma'am. For Yoga Day each year, our school organizes a program. They call us in the morning, and there is always an yoga expert there for the Hmm. day. So, वहाँ पे आसन्स कराते हैं in the morning. That's where I'll go. That's an habit I have for like 3 to 4 years. I've been going there. Mm-hmm. So that's the plan, and then yoga. So मेरा टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई रूटीन है नहीं, बट वेन एवर आई गेट टाइम, वेदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, आई ट्राई टू परफॉर्म योगा, राइट? जब भी आई परफॉर्म इट इन मॉर्निंग, तो इट सेंटर्स मी, like the entire day goes so well, everything goes so perfect because in the morning itself I get a boost, a really positive energy. It feels like a positive energy is flowing through when Hmm. I do it in the morning. सो आई बिलीव कि सुबह भले ही आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, योग करना अच्छी बात है। सुबह वो आपके पूरे शरीर को एकदम अलाइन कर देता है। Hmm. और मैम एकेडमिक में भी इसका बहुत ज्यादा हेल्प रहता है। जब आप सुबह सुबह एकदम अपने आप को सेंटर कर लेते हैं, मन को शांत कर लेते हैं, तो जब आप पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग एकदम स्टिल रहता है, कहीं फोकस भटकेगा नहीं पूरे दिन। Correct. यस और मैम। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि अभी जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है एक्चुअली, वो इस पूरे इसको ना इनिशिएटिव को रन कर रहा है, एंड देयर आर मेनी कॉन्टेस्ट्स जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और दिल्ली के बच्चों के लिए एक खास उसमें योजना है जिसमें अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो दे विल गेट द सर्टिफिकेट्स एंड आई गेस समवेयर सम अमाउंट इवन, अगर दे आर परफॉर्मिंग वेल. सो आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से अगर ये बात बच्चों तक जाए तो अच्छा रहेगा. हाँ जी। So now it's about your writing skills. Sana, as a writer, what are your ambitions? And what do you think about reader's choice these days? And कितने novels आप पढ़ पाते हो? Though you are too much busy in your, busy schedules या हम्म। अपनी studies है, but फिर भी थोड़ा मोड़ा जो भी है, वो कितना टाइम दे पाते हो? Ma'am, before 11th and 12th, I read a book a month. That was what I did. A book a month. Library से कोई भी हम्म. random book, any topic. हम्म. I have read the autobiographies. I have read history. It's just I love it. I love reading. I हम्म. love reading what others think, right? So starting से I have read a book a month or a book in 2 months. That's what I have done. हम्म. And right now, my as a writer, I believe my ambition is कि जितने भी अगेंस्ट सोशल कॉजेज हैं, उनको एक बहुत ब्यूटीफुल वे में लिखना, लोगों को उसके बारे में अवेयर कराना। दैट इज व्हाट आई बिलीव माय पर्सपेक्टिव इज ऑफ राइटिंग, कि मैं अपने ओपिनियन अबाउट द टॉपिक्स एंड आई एम राइटिंग इन इट, एक्सप्रेसिंग इट। एंड अबाउट रीडर्स चॉइस, इट वेरीज मैम, डिफरेंट पीपल डिफरेंट चॉइसेस, राइट? ऑल्दो आई बिलीव कि अभी देयर आर टू मेन कैटेगरीज। पहला इज द क्विक रीडर्स, जिनको हम्म. सिर्फ स्टोरी लाइन से मतलब है। दे वॉन्ट टू हैव अ क्विक रीड, दे डोंट वॉन्ट टू गिव अ नॉवल देयर entire day. They just want a quick read. That's the हम्म. first thing. Secondly, there are these readers who love friction, right? They just हम्म. want to escape their real life
and get indulged in someone else who is not even real. So that that also I really like to read fiction. It actually detaches you from yourself, and then you go on and read someone else's story who is not even real. You know that he is not real and she is not real, and yet you read them. So that's something that I really love to do. जब आप सोशल Yes. कॉजेज की बात करते हैं कि यू वांट हाँ टू जी. राइट समथिंग फॉर द सोशल कॉजेज एंड कमिंग डेज व्हेनेवर यू विल बी फ्री, सो इट इज अ Yes, ma'am. फ्री एडवाइस आई वुड से कि ऐसा जरूर लिखना जहाँ पे मेन एंड वुमेन का जो एक डिस्टिंक्शन है, अपनी राइटिंग से वो बताने की जरूर कोशिश करना कि दुनिया में दो ही तरह के प्राणी हैं, आइदर मेल और अ फीमेल। सो Yes, ma'am. जो ये जो हम बोलते हैं ना पैट्रियार्ची और मातृ जो सत्ता बोलते हैं, इसका हाँ कोई जी. मीनिंग नहीं है एक्चुअली। बोथ आर द यू नो पैटर्न्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर आप अपने को बहुत बड़ा दिखाओगे किसी के सामने तो दूसरे का ईगो भी हर्ट होता है, और दूसरे का, जिसे कहते हैं ना, उसे अपनी इम्पोर्टेंस कम लगती है। सो हैंड इन हैंड दोनों जाना जाना बहुत जरूरी है। और जब ये ऐसा Agreed, ma'am. होगा तो आप अपने सोशल कॉज को अचीव करने में बहुत आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि तब क्राइम्स कम होंगे। Agreed, ma'am. हाँ श्योर, मतलब ये एक ऐसा हाँ चीज है जी. कि बीइंग अ राइटर आपको आक्रामक नहीं होना चाहिए। देर आर मेनी वेज जिससे आप लोगों को अपनी बातों से समझा सकते हैं, और कोई ना कोई जो भी आपके बुक को पढ़े या आपके आर्टिकल को पढ़े, ही और शी शुड कम टू दैट कंक्लूजन कि हाँ भाई कितनी डेप्थ है इस बात पे। एंड हम जो अपने Yes, को, ma'am. चाहे आइदर वी आर अ मेल और अ फीमेल, बहुत सारी बातें जो है ना सिर्फ बातें करके सुलझाई जा सकती है। वन नीड Yes, नॉट टू ma'am. बी अ वायलेंट पर्सन। और पिछले कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं, टू अचीव समथिंग, टू या टू अचीव एक बिलोंगिंगनेस किसी आदमी या औरत को पाने के लिए, जो हाँ हम जी. इतने क्राइम कर रहे हैं, दैट इज टेकिंग अस टू अनदर लेवल। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोशल कॉजेज जिस पे काम होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम बहुत हिंसक हो Yes, रहे हैं ma'am. एक्चुअली, विचारों से भी, और हम अपने कामों से, कृत्यों से तो हो ही रहे हैं एट द सेम टाइम। मैम, हर रेवोल्यूशन में द इम्पोर्टेंट पार्ट वाज राइटिंग. हर करेक्ट। रेवोल्यूशन में हाँ हिस्ट्री के, दैट। राइट. रोमांटिसाइजिंग थिंग्स, स्पीकिंग इन अ प्रॉपर मैनर, राइटिंग इन अ एफिशिएंट वे कि लोगों को पढ़ के समझ में आए. तो एक्शन जरूरी है, पर आई बिलीव कि जितना आप बोल के किसी को समझा सकते हो ना, उतना और कोई किसी भी वे में नहीं कर सकते जितना आप किसी को अपने कलम से बता सकते हो. Correct. So this would be a final question, Sana, and हाँ जी. a short and a crisp answer would be needed. If given a chance, then what would be one thing that you would leave as a legacy for younger children to come? Mom, nowadays I believe that people don't express. They don't know how to express. Our generation, what we call Gen Z right now, they have this habit of bottling it all up. Hmm. Either they make joke about it or they bottle it up. Right. Correct. Hmm. So I want to have this safe platform, I would say, where people can share their thoughts in a peaceful manner. They can talk, and on the other hand, if they think that something wrong is happening, so I would like to have a platform where they can actually express themselves, and वो अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, and उसके solution as a community सब निकाल सकते हैं. Right. So So in that's what I would. hmm, that's a Hmm. wonderful idea as well, I would say. बट इसमें एक चीज है कि आप सोशल मीडिया को कमिंग, ये जो पूरी ये पूरा टाइम जो है इसको कितना हाँ जी. इम्पोर्टेंस देते हो, कि बच्चों को कितना टाइम सोशल मीडिया में होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी है सोशल मीडिया का फाइनल जो आज के दिन में आउटकम है, वो हर जो बंदा जो भी अपना रील बना रहा है क्या करे, उसका हाँ जो जी. फाइनल आउटकम है वो पैसा कमाने का है, यू नो समवेयर हम्म. डाउन द लाइन। हम्म. तो हाँ बच्चों को जी. सोशल मीडिया में कितना रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए? सोशल मीडिया लाइक मैम, इंस्टा। मेरी मम्मा ने मुझे 10th तक सोशल मीडिया पे आने नहीं दिया था.
हम्म। कहीं भी नहीं आने दिया, बिकॉज it is such a wide platform. You never know what you might have on the next page you scroll, right? हम्म। That can be impacting a child really badly. So I'm grateful for my mother for that कि उन्होंने मुझे 10th तक कुछ करने नहीं दिया. On the other hand, I believe that after a certain age, when you feel your child is irresponsible enough, right? हम्म। उसके बाद होना चाहिए. एकदम हम्म। इंडल्ज भी नहीं होना चाहिए कि आप उससे बहुत ही ज्यादा सीख रहे हो. बट सोशल मीडिया इज दी ओनली थिंग आई बिलीव जहाँ पे एवरीवन इज एक्चुअली कम्युनिकेटिंग वन वे और अदर, भले ही वो कितना भी फेक बन रहे हैं. हम्म। सोशल मीडिया इज ऑल फेक मैम, उस पे nobody is real, nobody is real. But still, when we are a social animal, right? And आई बिलीव कि हर बच्चे को आफ्टर अ सर्टेन एज सोशल मीडिया यूज करना चाहिए. इतना भी नहीं कि एकदम ही उसमें इंडल्ज हो जाए, बट हाँ सम वॉट तो करना ही चाहिए. ओके। जी. सो इट्स अ वंडरफुल आइडिया। और बच्चों को, आपकी जनरेशन के बच्चों को बहुत कुछ पता है, और अभी भी आई वुड से कि बहुत कुछ सीखना है, बट यस टाइम मैम. इज नेवर द लिमिट, आई वुड से। बहुत दुनिया देखनी है और बहुत कुछ सीखना है। यस मैम. और सना, आज जो आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया अपनी पढ़ाई से निकाल करके, सो इट इज वेरी मच appreciable, and thank you so much for coming to the platform and giving your important time to us. And this is for today. Thanks very much. और दोस्तों थैंक यू हमारा फॉर आज, हैविंग मी मैम. थैंक यू सना। एंड दोस्तों, आज हमारा वीडियो पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे इस पूरे वीडियो को हम प्रस्तुत करेंगे। आप यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, और बच्चों की इस जो भविष्य को लेकर के योजनाएं हैं उसके बारे में सुने, और उनके मन की बातों को भी समझने की कोशिश करें। क्योंकि बड़ों को सब सुनते हैं, बच्चों को सुनने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे वो अपने मन की बात कर पाए। इसके अलावा हमारे और भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पे भी जाएं, उनको फॉलो करें और अपने कमेंट्स दें। आपको कैसा लगा? आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए शहर के नए बच्चे से बातचीत करेंगे, उनके विचारों को आपके सामने रखेंगे। और CTY की पूरी टीम की ओर से आप सबका धन्यवाद। सना, आपका भी धन्यवाद और नमस्कार, एंड यू डू वेल ऑलवेज।